میں نے آلریڈی کافی مکاشفہ پہ ٹیچنگ دی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ شروع جو ہے وہ یہ ہے کہ یوحنا عارف اس خداوند کے ساتھ انکاؤنٹر کرتے ہیں، سامنا کرتے ہیں، جو مردوں میں سے جی اٹھے خداوند ہیں اور آسمانی مقاموں پر راج کرتے ہیں۔ آمین۔ یہ شروع ہے۔ میں شروع میں اس کا اگر سہیل بھائی اگر آپ اس کے شروع میں ہم یہ پڑھ لیں تاکہ ہم فیملیئر رہیں ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ اوکے، سو یہ جو اس کا بالکل شروع ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اوکے، اس کی پہلی ورس سے جو ہے پہلی 2 ورسز بلکہ پہلی 8 ورسز ویری کوئکلی۔ اوکے، یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 8 آیات۔ خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی شہادت دی۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیا میں ہیں، اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا، وہ دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے۔ تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے، اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی، اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا۔ اس کا جلال اور سلطنت عبدالآباد رہے۔ آمین۔ آمین۔ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ بے شک۔ آمین۔ خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ آمین۔ آمین۔ تو یہ ہمیں سمجھ لگی کہ شروع کیا ہے۔ اب ہم اینڈ میں آئے ہیں، لیکن مڈل کی چیزوں کو ہم ناؤ اینڈ دین آگے پیچھے ہم کور کرتے رہیں گے۔ اوکے، سو یہ جو ایک ہمارا میسیج کا ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ مسیح کا ریٹرن بہت جلدی ہے۔ مسیح یعنی مسیحا جو مردوں میں سے جی اٹھے خداوند، زندگی بخش خداوند، زندگی دینے والے خداوند، سچائی کے خداوند، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ تک رہیں گے، وہی مسیح ہیں ہمیں جنہوں نے زندگی بخشی، اور وہ جلد آنے والے ہیں۔ تھوڑی سی بات کریں گے خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے پریڈکشن تھی۔ آپ جینیسس سے لے کر اینڈ تک دیکھ لیں، خداوند یسوع مسیح کے آنے کے بارے میں نبوتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن نئے ٹیسٹمنٹ میں جو نیا عہد ہے اس میں نیو ٹیسٹمنٹ میں جو اس میں آ کے وہ ساری بھوشوانی اور جو پروفیسیز ہیں وہ پوری ہوئی ہیں۔ پراتنا am I saying the right way? Yeah? So yes، وہ پوری ہوئی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ڈینیل نبی نے اور بے شمار دوسرے نبیوں نے، یہاں تک کہ جو بہت نون ہے وہ یسایہ نبی نے
उनके बारे में कहा कि एक मसीहा आएंगे जो अपने लोगों को बचाएंगे। आमीन। ये जो है भविष्यवाणी है, ये प्रोफेसी है, और ये जो नबूवत है वो कहाँ जाकर पूरी होती है? यीशु मसीह में जाकर पूरी होती है। आमीन। तो जब मैं ये बात करूं तो ये मैं सच्चाई खुदावंद के कलाम से बोल रही हूं। आपने कहना है आमीन, और जोर से कहना है, ताकि तमाम वो चीजें सुने जो हम बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं, हम जानते हैं और हम सच्चाई पर खड़े हैं और सच्चाई को रिलीज कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो अब ये प्रोफेसीज खुदावंद यीशु मसीह में पूरी हुई हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर आकर इंसान के साथ इनकाउंटर किया, आमना सामना मिलाप किया। जो गुनाह में डूबे थे उनको प्यार से देखा। यस, यूहन्ना की इंजील 3:16, खुदावन ने जहान से ऐसी मोहब्बत की, मैंने ऐसी मोहब्बत कहीं नहीं देखी। आप अपनी कुर्बानी भी दे देंगे, कुर्बान भी हो जाएंगे, लेकिन लोगों को उस चीज का कोई एहसास नहीं है। लेकिन और हमें दुख होता है कि हमने इतना किया, ये किया, वो किया, लोग हमारी हमें अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको जो खुदावंद से नफरत करते थे, जिन्होंने खुदावंद को मारना चाहा, छेदा, और फिर भी उनके लिए सलीब पर क्या कहा? खुदावंद ने ये कहा, ए बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आमीन। इसी तरह हमें भी ऐसे ही करना है। जब हम देखते हैं कि कोई हमें अप्रिशिएट नहीं करता या समझ नहीं पा रहा, या मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उनके समझ में नहीं आ रही बात, और वो हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, हम उनको आगे बढ़कर अपनाने की कोशिश करते हैं या उनको सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं, उस वक्त हम भी यही कहें, ए बाप इनको आपके पाक हाथों में दे देते हैं, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आमीन। ये ऐसा हमने करना है, क्योंकि लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। आमीन। ओके, दुनिया में बहुत से लोग थियोलॉजी वाले तो ठीक हैं, जो स्कॉलर्स हैं, तो जो इस तरह के रिसर्च करने वाले हैं, उन्होंने हमेशा ये चाहा है कि हम पता करें कि खुदा यीशु मसीह की मतलब रूट या डेप्थ को देख लें। फर्क ये है, पौलुस रसूल ने कहा खुदावंद से दुआ की, खुदावंद मैं खुदावंद की उस मोहब्बत, खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने की कुदरत को जानना चाहता हूं। फर्क है, एक जो अपनी ताकत से लोग काम करते हैं, एक जो खुदावंद के हाथों में रहकर खुदावंद से मांगते हैं। खुदावंद उन पर रिवील करते हैं और उनको दिखाते हैं और उनके साथ खुद बात भी करते हैं। लेकिन अगर आप रिसर्च करते जा रहे हैं और कहते हैं मैंने पता लगा के छोड़ना है क्या? खुदावंद की वेल जो खुदावंद की डेथ हुई तो उसका प्रूफ मिला, उस पे ब्लड स्पॉट थे, उनको भी चेक किया गया, उसमें भी यही प्रूफ मिला कि ऐसा कोई ब्लड नहीं। ये खूबसूरत और इसके अंदर छोटे छोटे जर्रे हैं जो जिनमें स्पार्क है, हमने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। अलग है ये चीज। और ये भी पता चला कि कुछ हर चीज मैच हो रही है खुदावंद के जो फेस से, या जो डीएनए तो है ही फर्क था। खुदावंद का डीएनए तो दुनिया के जैसा तो है ही नहीं था। एनीवे, फिर भी लोगों को तसल्ली नहीं आई थोड़ी देर के लिए। फिर जो है समुंदर के तह से यशायाह नबी का जो सहीफा मिला, यशायाह नबी की बुक मिली, वहां पर लिखा था कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने हमारी मुश्किलों को, हमारी गुनाहों को, हमारे तमाम जो खुदा का कहर है अपने ऊपर ले लिया। हमारी सियासत उसके ऊपर थी और उसके मार खाने से हमने शिफा पा ली। प्रूफ मिल गया। खुदा यीशु मसीह पैदा होते हैं मिरेकलसली। मैं शॉर्ट रखूंगी,
पैदा होते हैं कैसे? पाखरू के वसीला से। औरत मर्द का कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फिर यूनिक वे से उनका जन्म भी होता है, और फिर भी लोग जो है समझ नहीं पाए। फिर खुदावन ने सच्चाई को जाहिर किया लोगों से। जब सच्चाई जाहिर की, आई टेल यू समथिंग, बेशुमार लोग हैं, आप उनको सच्चाई बताएंगे वो नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लें वो नहीं समझेंगे। एक लीडर, एक पास्टर या इवेंजलिस्ट या जो भी है, अपोस्टल जो भी है, जब वो खुद डेमोन्स्ट्रेट करता है उस चीज को, तो उसके दुश्मन भी एक दिन जरूर समझ जाएंगे। हमारे खुदा यीशु मसीह ने जमीन पर आकर उन कौड़ियों को गले लगाया, गुनाह से जो भरे थे उनसे प्यार किया, और झील के किनारे, गलील के झील के किनारे तमाम कोढ़ी जब खुदावंद वहां पर आकर खड़े हुए तो उनके पास आए। खुदावंद ने उनको हाथ लगाया। कोढ़ी को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, राइट? लेपर्सी है। खुदावंद ने उनसे प्यार किया। उन्होंने खुदावंद की आंखों में जिंदगी देखी, नूर देखा, सच्चाई देखी, और खुदावंद को उन्होंने कबूल किया और वो खुदावंद के पीछे आए। आमीन, हालेलुया। ये आपके और मेरे खुदावंद है। मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, पूरा फ्रेम। अब ये खुदावंद जो है सच्चाई कलाम में लिखा है, फिर वो सच्चाई को जानेंगे, और सच्चाई को जब जानेंगे तो सच्चाई उनको आजाद करेगी। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे काम किए जो दुनिया के किसी नबी ने या किसी भी खादम ने, रेवोल्यूशनरी ने, किसी ने नबी ने नहीं किए। He is absolutely incomparable। खुदावंद का कोई सानी नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। Absolutely unique and powerful, incomparable is Jesus Christ of Nazareth. Amen. खुदावंद यीशु मसीह है। अब आप आते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल्स को हर चीज से वाकिफ करवाया। फिर उनको ये बोला कि मैं इस तरह मर जाऊंगा, कुर्बान मैं इस तरह स्लॉटर हो जाऊंगा, और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। अब डिसाइपल सोच रहे हैं ये क्या है? ये खुदावंद की प्रेडिक्शन, खुदावंद के अपने मुंह की प्रोफेसी थी कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। अब ये देखिए, कब्र के अंदर रखा गया। अगेन, रिसर्च वाले कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। क्या रोमन सिपाही किसी को छोड़ सकते थे? किसी के अंदर ऐसा छोड़ सकते थे कि एक दम रहने दें, चलो एक सांस रहने दें तो ये रास्ते कब्र में फिनिश हो जाएंगे? नो, डेथ कंफर्म्ड हुई पूरी तरह से, जो है डेथ कंफर्म हुई है, और रोमन सिपाहियों ने उसे कंफर्म कर दिया है। उसके बाद जो है उनका एक जो है मोहर लग जाती है कि ये हो गया। उसके बाद खुदावंद को जाके कब्र में रखा गया है। ये सच्चाई आज जब आप अपने अंदर रखेंगे तो आने वाले दिनों में आपको ये बचा कर रखेगी। कोई भी दुनिया की ताकत, अभी मैं आपके साथ एक बात और शेयर करने वाली हूँ, कोई भी दुनिया की ताकत आपके ईमान से आपको दूर ना कर, हटाने ना पाए। याद रखें। ओके, ये मुर्दों में से जी उठे जिंदा खुदावंद की कहानी है। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो गए तीसरे दिन। सबसे पहली औरत थी जिस पर वो जो है जाहिर हुए, फिर डिसाइपल्स पे, फिर बेशुमार लोगों पर जाहिर हुए, अपने डिसाइपल्स पे, फिर जितने ईमान लाए उन पर जाहिर हुए। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको रिसर्च के लोग दबा नहीं सकते, दबा नहीं पाए। बहुत से मजहब, जो इस तरह के मजहब हैं, उन्होंने इसको दबाना चाहा, इस सच्चाई को जो है डिस्ट्रॉय करना चाहा, लेकिन ये नहीं, सच्चाई डिस्ट्रॉय नहीं हो सकी। लेकिन इस सच्चाई का ताल्लुक इज़राइल से भी है। इज़राइल को हम कभी भूल नहीं सकते। इस सच्चाई का ताल्लुक है इज़राइल से। आई सेड
Amen. Somebody say amen. सच्चाई का ताल्लुक है, इजराइल इसमें शामिल है, क्योंकि हमारे मसाया इजराइल में से निकले. Amen. हालेलुया. अब एक और रिसर्च की बात करेंगे. रिसर्च में मैंने देखा कि एलन मस्क, सब कौन कौन जानते हैं एलन मस्क? यस. उन्होंने एक रोबोट तैयार किया. उसमें जो है अब क्या कर रहे हैं कि पता कर रहे हैं कि देखें अब इसमें से ये रोबोट क्या बताता है खुदा यीशु मसीह के बारे में. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. रोबोट से उन्होंने पता किया. रोबोट ने एग्जैक्टली बोला है. उन्होंने उससे पूछा है यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह मसाया. क्या यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे? ही कंफर्म्ड यस, राइट. नो सेटिस्फैक्शन. लेकिन उन्होंने ये बात की कि हम रोबोट्स पर जो है रिलाई ना करें. इसके अंदर इसको इंसान ने बनाया है, और ये ठीक है, ये सच्चाई इससे जाहिर हुई है. लेकिन एक ये जो किताब है, ये सच्चाई की किताब है. इससे हम कभी भी दूर ना हो. अगर किसी को सच्चाई जाननी है तो जिंदा कलाम में मौजूद है. हर रिकॉर्ड मौजूद है, हर चीज मौजूद है. अपने खुदावन यीशु मसीह के इस जिंदा कलाम से कभी भी आप अलग ना हो, जुदा ना हो. इसको अपनी जिंदगी में डेली लीजिए और खुदावन यीशु मसीह की गवाही पर काम कीजिए. खुदावन यीशु मसीह की गवाही को याद रखिए कि कौन है खुदावन यीशु मसीह. आमीन. हालेलुया. अब जो है दोस्त जो इस वक्त ईमान में है, उनके लिए ये मैसेज है. यूहन्ना आरिफ ने जो है यूहन्ना आरिफ का मिलाप हुआ खुदावन से, जो आसमानों पर मुर्दों में से जी उठे खुदावन यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर हुआ. और ऐसी बातें जो अनवेयर्ड थी, जो छिपी थी, छिपे भेद थे, खुदावन ने अपने उस बेटे पर जाहिर किए. किस बेटे पे? जिसको तपते हुए तेल में फेंक दिया गया, लेकिन वो तेल उसे जला ना सका. आई एम गोइंग टू से समथिंग. आपको और मुझे चाहे कितनी भी मुसीबतें सामने आए, परेशानियां, चैलेंजेस आए, ओ वेरी गुड, इट्स ऑल गुड. क्योंकि मैं और आप तब तक यहां से नहीं जाएंगे जब तक वो खुदा का काम जो हमारी जिंदगी में खुदा ने रखा है वो पूरा ना हो. आमीन. सो यूहन्ना आरिफ ने को वो तेल जला ना सका, और यूहन्ना आरिफ को खुदावन ने ये मुकाशफा बख्शा कि जो अल्फा और ओमेगा है, मुर्दों में से जी उठा खुदावन वो मैं ही हूं. कंफर्म किया और यूहन्ना आरिफ से पर जाहिर किया कि मैं जल्द आने वाला हूं. और ये एक जो है एंजल, फरिश्ता के वसीला से खुदा उनको मैसेज मिलता है. और उसके बाद फरिश्ता के बाद, और एक यहाँ पर छोटी सी यूहन्ना आरिफ से गलती नहीं, लेकिन हम कर जाते हैं. यूहन्ना आरिफ ने सजदा करना चाहा फरिश्ते को. उसने कहा नहीं, मुझे नहीं सजदा करना, सजदा उसको करना है जो हालेलुया मुर्दों में से जी उठा खुदा, जिंदा खुदा है. आमीन. हालेलुया. साथ साथ मैं कुछ कवर करती जा रही हूँ. किसी इंसान पर भरोसा ना कीजिए, किसी बुत पर भरोसा ना कीजिए, किसी चीज पर भरोसा ना कीजिए, किसी रोबोट पर भरोसा ना कीजिए. भरोसा कीजिए अपने जिंदा खुदावन पर, और जिसके ये किताब हमारे पास है, जिसका जिंदा कलाम हमें दिया गया है गाइड करने के लिए. जब तक ये हमारे पास है, हमारे अंदर है, हम जानते हैं सच्चाई को, और सच्चाई हमें कायम रखती है, आजाद रखती है. आमीन. गुलाम नहीं बनने दी. खुदा ने कहा मैं जल्द आने वाला हूं. Let me read it in English. Behold, I am coming quickly. बहुत जल्दी आ रहा हूं. Blessed is he who keeps the word of the prophecy of this book. मुबारक है वो इंसान जो इस भविष्यवाणी या नबूवत की किताब पर भरोसा रखता है. आमीन. ये प्रोफेसी की किताब है.
जो इस पर ईमान रखता है, जो इस पर कायम रहेगा, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा. Amen. Can I have an amen? Amen. Okay. So this is कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा. खुदावन उसके लिए, खुदावन के पास बहुत ब्लेसिंग्स हैं. ब्लेस्ड का मतलब जो हिब्रू में है, इसको बराक भी कहते हैं, जिसका मतलब है फेवर से भरा हुआ. यानी आप फेवर को तो फेवर ही कहेंगे, मुझे अपनी उसमें नहीं आ रहा एशियन लैंग्वेज में. मुबारक जो इंसान है उसके लिए फेवर है, उसके लिए ऐसा फेवर है जो कभी खत्म नहीं होता, जो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा. आमेन. उसके लिए ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, कोई एक ये नहीं कि 2 मिनट के लिए आइए, वो ब्लेसिंग से कवर रहेगा, ब्लेसिंग में डूबा रहेगा. यहां पर लिखा है ब्लेसेड इज ही हु कीप्स द वर्ड्स ऑफ दिस प्रोफेसी. मुबारक है वो जो इस नबूवत की किताब को अपने अंदर रखता है, उस पे कायम रहता है. आमेन. ओके. यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने जब आने का लिखा है, तो अक्सर लोग, बहुत से लोग कहते हैं ये तो इतनी सदियों से चला आ रहा है. राइट. ठीक है, बहुत देर से चला आ रहा है, और इसका ये मतलब नहीं कि हम ये कहें पता नहीं अभी काफ़ी टाइम होगा. खुदा यीशु मसीह के चेलों ने, हालेलुया, आई बिलीव, अगर किसी को मिल जाए, मैथ्यू 24:43 में चेक कर लेते हैं. हालेलुया. मैथ्यू 24:3 में चेक कीजिए. वहाँ पर शागिर्दों ने खुदावंद से पूछा कि खुदावंद आप कब वापस आएंगे. जब खुदावंद ने उनसे कहा कि आई विल बी गॉन, तो उन्होंने पूछा कि कब रिटर्न, आपकी वापसी कब होगी. जिसको मिल जाए खड़े होके जोर से पढ़ लीजिए. हालेलुया. जिसको भी पहले मिल जाए आवाज, बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए. अगर 1-2 भी हो जाए, नो प्रॉब्लम. हालेलुया. प्रेज. आमीन. आमीन. इस पे कायम रहना है. ओके. अनदर एक और, पहला तेसलोनियन उसका 5 बाब और 2 वर्स निकाल लीजिए. पहला तेसलोनिकियों उसका 5वां चैप्टर, उसकी 2nd वर्स निकाल लीजिए प्लीज. और इसके साथ ही मैथ्यू 24:43 भी निकाल लीजिए प्लीज. तो इस पे हम बात करेंगे, उसके बाद हम अपना मैसेज रैप करेंगे. जी. हालेलुया. थैंक यू जीसस. वी गिव यू प्रेज एंड ऑनर. वर्शिप योर होली नेम. हालेलुया. थैंक यू जीसस. पहला तेसलोनियन उसका 5वां बाब, उसकी 2 वर्स. ओके. राइट. एक और है स्क्रिप्चर, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 10. ये 2-3 स्क्रिप्चर्स. जी.
जिस तरह रात को चोर आता है। किस तरह आता है? जिस तरह रात को चोर आता है। ये कब हो क्या है? खुदावंद का दिन इस तरह आता है। आमेन, हालेलुया। थैंक यू भैया से, गॉड ब्लेस यू। ओके, 2 Peter chapter 3 verse 10. Hallelujah. Come on, church. We have to be quick. We have to be quick. We have to cover. Hallelujah. आमीन। प्रार्थना, अगर आप ये 2 Peter chapter 3 verse 10 हिंदी में पढ़ दीजिए प्लीज। आमीन। ओके, ये हम सब देख रहे हैं कि कंफर्म्ड है कलाम में, खुदा यीशु मसीह ने ये नबूवत की है, अपना कलाम किया है। ये वही कलाम है जिस तरह शुरू में खुदा ने कलाम किया, लेट देयर बी। हालेलुया। लेट देयर बी क्या जी? यस, लेट देयर बी लाइट। सो इस तरह इस यहाँ पर भी खुदावंद क्या कह रहे हैं? वही खुदावंद कह रहे हैं कि ये सब कुछ होगा। अब आज मेरे साथ खड़े भी हो जाइए और इसको हम देखते हैं, पूरे अलर्ट होते हैं। ये खुदावंद ने सब चीज़ें कही हैं कि ये सब कुछ होगा, और ये मत सोचें कि कुछ इतनी देर का तो नहीं हुआ। कभी भी ऐसे ना सोचें। आपने सुनी होगी एक बहुत पुरानी कहावत। एक खेत में काम करने वाला था, क्या कहते हैं, जो किसान था। तो उसने बीम पकड़ी, जो है बीम पकड़ी थी, तो लकड़ी की बीम। तो उसे किसी ने कहा ये सोना बन जाएगा। कहते अच्छा सोना बन जाएगा, और 24 आवर्स में कोई जगह होगी ऐसा वक्त, ये सोना बन जाएगा। कहते ओके। बिल्कुल जो एंड पे वो उकता गया, कहने लगा ये तो अभी तक नहीं सोना बना, अगर ये सोना नहीं तो लोहा ही बन जाए। तो वो लोहा बन गया। ठीक है, इसी तरह हम ये ना सोचें कि अभी नहीं हुआ, इतने साल हो गए। पौलुस रसूल ने कहा doesn't matter, he said I am coming, so he is coming. Amen, hallelujah। अगर खुदावंद ने कहा कि मैं आ रहा हूं, तो खुदावंद आ रहे हैं। इसके लिए अब हमने करना क्या है? इसके लिए हमने करना ये है, ये विजिट होगा, सरप्राइज विजिट। जैसे आपको कोई समझा नॉक ऑन द डोर, कौन है ये, कौन आ गया? खुदावंद आ गए हैं, ऐसे होगा। वो 10 कंवारियां जो 5 बेवकूफ थी, जिन्होंने सोचा अभी नहीं, अभी वक्त है, अभी ये नबी भी कहते आए हैं, ये है वो है। लेकिन 5 जो थी होशियार थी, चुस्त थी, उन्होंने अपनी मछलियों को रिजर्व ऑयल से भर लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि दूल्हा आए और हमारी मछलियां खाली हों, हमारे दिए ना जलें। ओह, अपने खुदावंद के लिए अपनी जिंदगियों के दिए जलाए रखें और इनको कायम रखें। रिजर्व ऑयल, पवित्र आत्मा से भरे रहें, पाखरू से भरे रहें। अगर पाखरू आपके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं। मैंने देखा है जब पाक रूह की कमी होती है तो बहुत से लोग बहुत सी चीजें करते हैं, वो जानते नहीं कि कोई भी चीज हम पाक रूह के बगैर करते हैं उसमें हम फंस जाते हैं, और फिर ऐसे फंसते हैं कि हम निकल भी नहीं सकते। लेकिन उसके एक हल है, अपने खुदावंद के आगे झुक जाएं। That's the only way। और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। हम स्मार्ट बनते हैं, नहीं, कोई भी ऐसा स्मार्ट नहीं। वो लूसीफर को देखिए कितना स्मार्ट बनता है, लेकिन उसी ने खुदावंद के आगे झुकता है। उसको पता है उसका टाइम थोड़ा है, टाइम थोड़ा है, खुदावंद जल्द आने वाले हैं, और उसका टाइम थोड़ा है कि उसने खुदावंद के आगे झुकना है, और उसका काम उसको खुदावंद ने बांध देना है,
और फिर फेंक देना है नीचे। आमेन, हालेलुया। ये खुदावंद के कलाम की बातें हैं जिन्हें हमने याद रखना है। 5 कंवारियों की, जो 10 कंवारियों की स्टोरी ऑलवेज याद रखें। जब आप अपने हाथ देखें, अपने हाथ देखिए, अपने हाथ देखें। एवरी टाइम इस एंड टाइम में अपने हाथों को देखें, हाथों को धोते हैं, हाथों को ऑयल लगाते हैं। याद रखें 10 कंवारियों की कहानी, स्टोरी, कि ये जो है चुस्त हैं, ये जो है क्यों है? फुलिश, सुस्त, फुलिश हैं, सुस्त हैं। इसलिए इसके बारे में, सुस्त के बारे में मिसाल की किताब में, प्रोवर्ब में बहुत कुछ लिखा है। हम क्या करें? चौकन्ने रहें। आइए देखें, 2-3 पॉइंट्स हैं। एक्सपेक्टेशन होनी जरूरी है। अगर आपने आज और मैंने कलाम सुन लिया है, एक्सपेक्टेशन, हमें उम्मीद रखना बहुत जरूरी है। ये हमारा पॉइंट है, इसको आपने साथ लेके जाना है। हमारे अंदर अगर हम एक्सपेक्ट नहीं करते, बच्चा कंसीव होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बच्चा हमारा 9 मंथ के बाद पैदा होगा, ये ऐसा होगा, फिर हम ऐसे करेंगे। इन द सेम वे कलाम जब आपकी जिंदगियों में, मेरी जिंदगियों में बीज बोया जाता है, एक्सपेक्ट करें इस कलाम से कुछ होगा। आमेन। खुदावन की आमद का एक्सपेक्ट करें, खुदावन के आने को एक्सपेक्ट करें, उम्मीद रखें। ओके। नंबर 2, प्रेपरेशन, तैयारी। 5 की तैयारी नहीं थी, 5 की तैयारी थी। आमेन। तैयारी कैसे करनी है? हर वक्त खुदावंद के कलाम को अपने अंदर रखना है, पाक रूह से जुड़े रहना है। इट डजंट मैटर आप गैर कौमों से आए हैं, या आप जूइश कन्वर्ट हैं, या कोई और कन्वर्ट है, या आप यू हैव बीन क्रिश्चियन फैमिली में बोर्न हुए हैं। इट डजंट मैटर। एज जो हमारी लाइन है वो ये है, जो आखिरी दम तक वफादार रहेगा और ये इकरार करेगा कि यीशु मसीह ही खुदा है, यस, वो हमेशा हमेशा की जिंदगी में दाखिल होगा, उसको इनाम मिलेगा। आमीन। आप मेरे साथ एग्री करते हैं? हाउ डू आई नो? कैसे? आमीन। मुझे हाथ हिला के दिखाइए कि वाकई राइट। अभी आपने इस चीज को याद रखना है। नाउ लास्ट पॉइंट, हालेलुया, डेस्परेशन। डेस्परेशन का मतलब है मुझे सख्त जरूरत है, मैंने इसको पाना है, मैंने इसको लेके रहना है। अगर आप जो पुरानी हमारी औरतें थी, बुजुर्ग, वो अगर कोई देख लेती थी झुमके वुमके या कुछ, तो कहती थी हमें वो हासिल करने हैं, हमने उनको जरूर लेना है। इस साल नहीं तो अगले साल तो हमने जरूर लेना है। हम ये डेस्परेशन रखें कि मैंने पाक रूह की कुदरत से भरना है और मेरी मशल में, मेरे दिए में तेल इतना होगा कि वो जलता रहेगा जब तक खुदावंद नहीं आ जाते। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये 3 चीजें, एक्सपेक्टेशन, प्रेपरेशन और डेस्परेशन, यानी उम्मीद रखनी है, जो उम्मीद में कायम रहना है, और अपने आप को अपनी तैयारी रखनी है, और अपने अंदर वो रखना है कि मुझे ये हासिल करना ही है, मुझे इसको हासिल करना ही है। सो गॉड इज गुड, जीसस इज कमिंग वेरी सून। आमेन। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है दुनिया भर में? जीसस इज कमिंग वेरी सून, सूनर देन वी थिंक। इसलिए कोशिश कीजिए अपने घराने के लोगों को बचाने की, कोशिश कीजिए मिलकर दुआ में शामिल होने की, ताकि हम सब मिलकर खुदा की रूहों के लोगों को जीत सकें। आमीन। ये ना जोर से ना तवानाई से, खुदा के रूह से हो जाएगा। आमीन। आइए दुआ मांगे। थैंक यू जीसस, लॉर्ड वी गिव यू ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेजेस। आज खुदा हमने जाना है, खुदा ने एक दफे फिर से रिमाइंड करवाया है कि हमने जागते रहना है, हमने बेदार रहना है, हमने चौकन्ने रहना है, और खुदावंद हमने अपने आप को आपके कदमों में रखना है, जो एक अच्छी जगह है जहाँ से हमें हमें हर तरह का खुदावंद हर तरह की कंफर्ट मिलती है,
विजडम मिलती है और खुदावंद हम सिक्योर रहते हैं। सब कुछ खुदावंद आपके पाक और जलाली नाम में मांग लेते हैं। एक एक जिन्होंने इस कलाम को सुना है, खुदावंद कलाम जिस ज़मीन पर गया है, हर एक के लिए खुदावंद आपका मसा, आपकी कुदरत और आपका अभिषेक, आपका खुदा पाक रूह की कुदरत यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। रिवाइवल, खुदावंद आपकी कुदरत, आपका मसा लोगों को बेदार करें, लोगों के ज़हन खुल जाएं, कान खुल जाएं और लोग खुदावंद आपके इंतजार में खुदावंद रहें हर वक्त, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।